Am I audible to all of you? Okay, so let us join some more participants, then we are going to start the session. Okay, good morning, guys. So, in this session, what we are going to do, so let's start. We are going to do little bit basic question first. After that, we'll see the, you know, little bit of, you know, harder question, है ना? तो बेसिकली आप लोगों को बेसिक के बारे में होप कि सब पता है, बट फिर भी मैं क्वेश्चन जब एक्सप्लेन करूंगा, आई टेल यू and I'll go through once with that basic. Okay, so starting with the first question, let's start. So this is what your first question, and this is very easy. I have kept it here because for your basic drill, you know. Okay, so try it. I'm giving you 1 minute behind every question. Just try it out. After that, I'm going to explain it. Okay, so this is very easy question. That is why I'm giving you only 30 to 40 seconds behind this question. Okay, and be responsive with the lecture. Okay, one answer is coming. That is 2. What about others? बाकी लोग नहीं आ रहा है, then say no, yes, anything. I need that. Okay, one answer is also coming. That is 2. ठीक है. So let's see कि how you can do this type of question. A man buys a cycle. ठीक है, तो buy a cycle means उसने खरीदा. So that will be what your cost price. Is it correct? So that will be what 1400. Now loss. ठीक है, मतलब just suppose कि cost price 100 है. ठीक है, just suppose cost price is 100. तो अगर उस पर 15% का लॉस होता है, ठीक है, 15% लॉस, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? ठीक है, सेलिंग प्राइस विल बी व्हाट 85. इज इट करेक्ट? है ना? तो मुझे क्या चाहिए, ये तो हमारे पास गिवन है क्या, 100 की वैल्यू. मीन्स आई कैन से दिस 100 वैल्यू दैट इज सीपी इज गिवन. आई एम करस्पॉन्डिंग दिस वैल्यू विथ एब्सोल्यूट गिवन वैल्यू. ठीक है, मतलब जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं जो मैंने वैल्यू लेट किया है. ठीक है, so I can say this 100 will correspond to this 1400. So what you have to find, you have to find selling price, and that is nothing but 85. So 85 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 1 की वैल्यू आ जाएगी 1400 अपॉन 100, and you have to find 85 की वैल्यू. So what you will do, 1400 अपॉन 100 into 85. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 0. So that will give you 1190. ये क्लियर है सबको? ठीक है, तो बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक वैल्यू कंसीडर कर लो. अगर यहाँ पे लॉस हुआ तो 15% लेस हो गया ना, तभी 85 आ गया. अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता, ठीक है, जस्ट सपोज की प्रॉफिट होता, तो ये 115 की वैल्यू हम लोग निकालते. ठीक है, यहाँ पे 85 की जगह पे 115 की वैल्यू निकालते इफ देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट. ओके, सो दैट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इज इट करेक्ट? से यस एवरीवन. I need your response because you are getting or not getting, that really that really matters for me. Okay, because from here I can't even see your expression you are getting or not. So those who people
the people who are getting, just let me know. Yes, yes, yes. Then only I will get to know. Okay. So hope you will be responsive in the lecture. Okay. So shall I move ahead now, everyone? तो ये बहुत ही easy फंडा है, and hope you all would have know about this. Okay. So finally, I'm moving ahead now. So this is what, once again, a easy question. Just try it out. Okay. This question I have taken, for your basic drill. After that, we are going to see the question, which is little bit, mind, twisting questions like, okay. Okay. So shall I? This is very easy question. You have to, find out the percentage only. Okay. One answer is coming from Nadia. Okay. And what about others? There are 10 people with me. Okay. So I need answer from each and everyone. Either it is yes or no, then also it not matter. Okay. But at least give the answer. Okay. Be responsive always. Okay. So one answer is coming. Now I am going to solve it. Shall I move? Or you are trying? Let me know. Okay, solving. Okay, do. I'm giving you little bit more seconds. Okay, this is very easy. Not you don't have to take that much time. Okay, yeah, one answer is also coming from Tavlia, and that is what 20%. Okay, so this is very easy question. A man bought an old typewriter for 1200. So this is what the cost price. And here he spent 200. So total cost price will be what? This 1200 plus this 200. That would be what? The total cost price, CP. Is it correct? है ना? He sold it for 1680. Means I can say that 1400 is what the cost price, and 1680 is what the selling price. So how much increased here? So if you will take that, will give you 280. I thought so. Okay. मतलब 280 एक्स्ट्रा रुपीज में उसने क्या किया है, सेल किया है. एंड नाउ यू हैव टू फाइंड कि व्हाट इज दिस 280, हाउ मच दिस 280% of this 1400. So you have to write this 280 on your numerator and this 1400 in your denominator, and you have to multiply this by 100 because you have to find percentage. Okay, so 0. और याद रखना हमेशा बेस में, डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस ही आता है. Until and unless क्वेश्चन में ये दिया ना हो कि you have to find loss and percentage on selling price. Okay, so this will be get cancelled, and this is nothing but 20. So that is nothing but 20%. This is very easy question. Okay, you don't have to solve that much because I'm explaining. That is why I'm explaining. I'm solving. Okay, so hope this would have been clear to all of you. Is it correct? Say yes, everyone. Then I'll move further. Very good. What about others? Getting या किसी को कोई problem है? Then let me know. Anyone having any problem regarding this question? Okay, okay. So I'm moving now. Okay. So this is the question. This type of question is coming in your examination. Okay. Law 5 year. So try to do it. It is very easy. I'll tell you the method how you can do this type of question. Okay. So just try. I'm giving you 1 minute.
Okay, one answer is coming from Sujay, and that is D, 25%. Okay, what others? Okay, 2-3 people is giving answer from Sujay, from Nadia, from Avanya, from Astha, and that is 25%. All of are giving 25%. So let's see how you can handle this type of question. Selling price, you don't have to do extra. Just write SP of 12 articles now. So I can write SP into 12 is equal to CP into 15. बस्ट इतना किया, योर वर्क इज डन. अब क्या कर सकते हो, इसको रेशियो फॉर्म में लिख दो, एसपी अपॉन सीपी. ठीक है, अब एसपी के साथ ये 12 मल्टीप्लाई हुआ है तो 12 यहां आ जाएगा क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और सीपी के साथ ये 15 मल्टीप्लाई हुआ है तो यू हैव टू राइट 15 हियर बिकॉज हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज टेकिंग प्लेस. ओके, so now just suppose कि SP is 15 and CP is 12. Now you have to just suppose, ठीक है, कि CP is 12 rupees and SP is nothing but your selling price is 15 rupees. अब सोचो आपने एक सामान खरीदा, ठीक है, 12 रुपीज में, और आपने उसको सेल किया 15 रुपीज में. ओके, तो 3 रुपीज का प्रॉफिट हुआ ऑन दिस 12 बिकॉज मैंने बताया है कि यू हैव टू टेक ऑलवेज in base what cost price, so you have to take 12 here and you have to multiply by 100 because you have to find percentage. So dekh lo 3 by 4 and this will give you 25% as your answer. Is it correct? This could be very easy. Hope everyone is getting कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है very easily. Yes or no? Okay, so everyone is getting this. Let me know, then I'll move further. Or anyone having any problem, then also you can tell me. Okay, hope this is clear. Shall I move now? Sir, otherwise directly we can do 15 minus 12 upon 12. Yeah, also you can do, but आपको एक प्रोसेस पता होना चाहिए ना, ठीक है ना, प्रोसेस. हाँ, एक्चुअली में क्या हो रहा है दैट यू शुड नो ना. ओके, on the basis of that particular question, we are going to do one more question and try it out and see how you can do this question. This is a little bit tricky and this is the previous year question. Okay, so just try it out. How you can do, let me know. Okay, and everyone try it. I'm giving you 1 minute. So देखो कैसे करना है. I'll say you one unique way to do this question. Okay,
Getting? Your 1 minute has been over. So, anyone who is getting about this? 16, one answer is coming from Astha. Good. It is good to see you that you are giving the answer, everyone. Not anyone else? Okay, one answer is also coming. What? Okay, so shall I? मैं करवाऊं? Let me know. Yes or no? Okay. Okay, so see, I'm going to tell you one very unique method of doing this question. Is it correct? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि अगर मैं कोई चीज 4 लेता हूं, ठीक है, 4 इज नथिंग बट, ये देखो 100, मतलब अगर मैं 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो आई कैन से दैट इज नथिंग बट 1/4, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो अगर मैं कोई नंबर इज 4 और मैं इस पे 25% इंक्रीज करता हूं, 25% इज नथिंग बट 1/4, तो मैंने इनिशियल वैल्यू 4 कंसीडर किया, अब इस पे 1/4 इंक्रीज करूंगा तो व्हाट आई कैन डू, 4 का 1/4 इज नथिंग बट 1, so it will increase and it will get converted into what, 5. Is it correct? This is what 25% increase. Yes or no? एक ये वे है, दूसरा वे है कि 100 ले लो और 25% इंक्रीज कर दो, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 125, इसको रिडक्ट कर लो, 25 4 जा 25 5 जा, यू विल गेट 4:5. So this is what, if you are increasing one number that is 4 by 25%, so it will make itself what, 5. तो ये फंडा क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखो 20 आर्टिकल है, 20 आर्टिकल है और मुझे क्या करना है, 4, ठीक है। अब यहां पे ये 4 जो है, 4 इज नथिंग बट द प्राइस, ठीक है। नाउ हियर इट इज ऑन 25%. Yes, I will explain. Wait for a minute. I'll explain once again the whole thing. But first you have to focus here. Okay. So now I can say this is what your price and this is what your article. Is it correct? अब यहां पे क्या कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है 25%, मतलब प्राइस जो 4 था that will make it 5, ठीक है। अब मुझे यहां पे क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि ये इसके इक्वल दे दे, मतलब ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव 80, यहां पे क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये मुझे, मतलब ये आपको 80 दे दे, तो आई कैन से दैट विल बी व्हाट, 16. सो 16 फाइजा इज नथिंग बट 80. 80 आ गया, मतलब this 16 is satisfying our condition, so your answer will be 16. This is one of the method, unique method. By this you can do this type of question. Okay, चलो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या आते हैं, परसेंटेज इंक्रीज पे आते हैं। तो अगर मैं 25% का फ्रैक्शन टर्म में फाइंड आउट करूं तो आई कैन से दैट विल बी नथिंग बट 1/4, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं अगर 4 को मुझे 25% से इंक्रीज करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज व्हाट 1/4, तो 4 मैंने इनिशियल वैल्यू कंसीडर की एंड यू हैव टू इंक्रीज बाय 1/4, तो 4 का 1/4 इज नथिंग बट 1, so you have to increase 1, so it will get converted into 5, so 4 जो है वो 5 बन जाएगा अगर 25% इंक्रीज होगा, देन इज इट करेक्ट। या फिर मैंने नेक्स्ट मेथड भी बताया कि 100 है, उस पर 25% इंक्रीज करोगे तो इट विल मेक 125, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे, मींस इनिशियल वैल्यू में, तो 25 4 जा एंड 25 5 जा एंड दैट इज नथिंग बट 4 5 हो जाएगा, मतलब 4 विल मेक इटसेल्फ 5. इज इट करेक्ट नाउ? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि 20 आर्टिकल is the same as the selling price of X article, but here profit is 25%. तो 25% इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने 4 को प्राइस कंसीडर किया, तो यहां पे जो प्राइस हो जाएगा दैट इज व्हाट इंक्रीज्ड बाय 25%, सो इट विल मेक इटसेल्फ व्हाट 5. इज इट करेक्ट? अब यहाँ पे आर्टिकल कितना है, 20 आर्टिकल है इन इनिशियल, ठीक है।
तो मुझे अब फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू रखी जाए, ठीक है, कि ये इसके इक्वल हो जाए। इक्वली तो करना है ना, हियर सेम एज लिखा है ना, सेम एज, तो इक्वली तो करना है। तो 24 जा 80, तो यहाँ पे आर्टिकल के वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये मुझे 80 दे दे। इज इट करेक्ट? तो अभी यहाँ पे 16 ऐड करूँ, 16 मल्टीप्लाई करूंगा, देन इट विल गिव 80। सो आई कैन से दिस 16 इज सेटिस्फाइंग माय कंडीशन, सो दैट इज व्हाई B will be what? Our option. Is it correct? Hope this should be clear to everyone. I have explained it 2 times. ठीक है? So hope ये clear हुआ रहेगा, है ना? Shall I move now? अब जो मैंने मेथड पहले वाला बताया है, by that also you can do. ठीक है? By also you can do this question. So try it out at your home. That will be your homework. If you are not getting, then in next session I'll explain that also. Okay, but this is some unique method you have never known or never have done before. Okay, that is why I have explained this type of thing. Okay, in examination you can do directly if you know these things. Okay, and this will take only 1 or 2-3 seconds if your mental calculation is little bit good then. Okay, so I'm moving now. So this is what your caselet type question. Okay, so this is percentage caselet type question. You have to read the whole scenario first, and after that we on the basis of we'll get 3 to 5 question. So just read 2 times. ठीक है, इसको आप 2 बार पढ़ो. Just try to understand what is it. फिर मैं आपको explain करता हूँ कि ये क्या है. I'll explain that also. Okay, so I'm giving you little bit of time. So just try it out. And if it is done, then let me know. Yeah, it is done. Okay, so have you read it and understood it? अभी मैं आप लोगों को ये सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज इट. ठीक है, तो एवरी ईयर अ सर्वे ऑफ, तो सेलाई ना. ओके ओके, so every year a survey of 1000 people is conducted by World Health Organization, that is WHO. Okay, so 100 people का सर्वे होता है. ठीक है, कोई भी जगह है. ठीक है, सो लेट्स ए प्लेस ए पे होता है. जस्ट सपोज हु फाउंड इन 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 the percentage of people affected by malaria were 30%, 40%, 30%, 20% एंड 45%. मतलब रिस्पेक्टिवली मीन्स क्या कि यहाँ पे 2005 में 30%, 2006 में 40%, आई कैन से 2007 में 30%,
फिर 2008 में 20% एंड 2009 में इट इज 45%। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये मलेरिया इन्फेक्टेड पीपल होते हैं, ठीक है। नाउ हु ऑल्सो फाउंड दैट एवरी ईयर आउट ऑफ अफेक्टेड पीपल ऑफ 60% वेयर स्टूडेंट, मतलब जितने भी अफेक्टेड होते हैं, जैसे जस्ट सपोज कि मैंने एक ईयर का कंसिडर मैं करता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं कि एक ईयर में मान लो 30%, मीन्स आई कैन से कि 1000 का 30% आपको फाइंड आउट करना है, तो हाउ विल यू फाइंड 30%? तो आई कैन से कि अगर 10% फाइंड आउट करना हो कोई भी नंबर का, अगर 10% फाइंड आउट करना हो तो यू हैव टू शिफ्ट 1 डेसिमल बैक, ठीक है, 10%, then you can easily find 10%. I can say कि 10% is what? 100. अब मुझे क्या करना है? 30% फाइंड आउट करना है, तो 30% मैं अगर फाइंड आउट करूं तो आई कैन से दैट विल बी नथिंग बट 300. ओके, सो मान लो मैंने 2005 कंसीडर कर लिया, ठीक है, उसमें क्या है कि 300 पीपल है जो कि मलेरिया से इंफेक्टेड है, ठीक है, मलेरिया इंफेक्ट। नाउ यहां पे WHO फाउंड दैट आउट ऑफ अफेक्टेड पीपल 60% वेयर स्टूडेंट, तो इसका जो है ना 300 का 60% स्टूडेंट होंगे, ठीक है, ये 300 का 60% फाइंड आउट करोगे, 10% आप क्या फाइंड आउट करोगे? दैट विल बी व्हाट? ऑफ हाउसवाइफ्स एंड 30% विल बी व्हाट? द ड्राइवर्स। इज इट करेक्ट? सो दिट इज, ये ऐसे अकॉर्डिंगली क्या करेगा? वॉक करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि 300 अगर अफेक्टेड है उसमें 60% स्टूडेंट होगा, 10% विल बी हाउसवाइफ एंड 30% विल बी व्हाट? द ड्राइवर्स। ओके, द नंबर ऑफ हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट एंड ड्राइवर्स वेयर इन द रेशियो 20, 11 एंड 9 इन रेशियो एवरी ईयर। मतलब अगर देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि देयर आर, मतलब इफ 2005 का ही मैं कंसीडर करके चल रहा हूं, अगर 1000, देयर आर टोटल 1000 व्हाट पीपल का सर्वे हो रहा है, ठीक है, इस 1000 पीपल में, ठीक है, अगर मैं रेशियो में बात करूं तो आई कैन से 20, 11 एंड 9 विल बी व्हाट? दिस इज द रेशियो ऑफ पीपल, जिसमें द नंबर ऑफ हाउसवाइफ, ये हाउसवाइफ है, एंड दिस इज स्टूडेंट एंड दिस विल बी व्हाट? driver. Means I can say this 20 will correspond to housewife, this 11 will correspond to student and this 9 will correspond to driver. ये total 1000 में अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इसका रेशियो ऐसे होगा, और फिर हम लोग इसको अगर डिवाइड कर दें इस रेशियो में, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ हाउसवाइफ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द नंबर ऑफ ड्राइवर. So this is what the whole scenario in front of your screen. Is it? Say yes or no. Getting scenario clear है सबको? Anyone who does not getting this? Okay, so ये scenario clear होना चाहिए, then only you can do the question based on this. Okay, तो मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स करके सारा चीजें समझाई है ताकि you will not find any problem further. Okay, so now I am moving on the question. ठीक है, so this is what the same thing, this is same thing what was in the previous slide and this is what your question. ठीक है, so you have to do question on the basis of this, and this is what the caselet type question, and this is very important. Okay, so just try. Okay, one answer is coming from Sujay. What about others? Just try to give the answer. मैं भी explain करने वाला हूँ, ठीक है, मैं भी explain करूंगा, so don't worry, but I'm giving you little bit of time. Just try it out. Yeah, you can say this is DI, or you can say this is what? Caselet type of question. Okay, okay, one answer is also coming, that is B. 30, 2 people are giving answer 30. What about others? Okay, I'm expecting the answer from everyone. ठीक है, कोई time ज़्यादा लेता है, that is not bad thing, just try it. Okay, now it is taking time, but after some time it will get easier.
ओके, सो shall I move now? मैं बताऊं बाकी लोग? ओके, one answer is coming, that is A. Okay, so don't worry, I'll tell you. तो बेसिकली देखो ये क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं है. इफ यू विल understand the things clearly na, you will get the answer. But the thing is what, कि how you can do it very fast. ठीक है, तो फास्ट कैसे करना है, that I'm going to explain you. And the explanation will be in very simplified way. कैसे, let's see. अभी देखो मैं I'm going to do it. Okay, so in the year 2007, find the number of housewives affected by मलेरिया. तो 2007 है, ठीक है. तो ये देखो 2007 कौन से नंबर पे है, यहाँ पे 5, 6, 7 थर्ड नंबर पे है. ठीक है, तो यहाँ पे भी थर्ड नंबर जो है, थर्ड परसेंटेज विल करस्पॉन्ड टू व्हाट, 2007. एंड यू नो कि हर एक ईयर जो है 1000 पीपल का क्या होता है, सर्वे कंडक्ट होता है. सो आई कैन से कि 1000 का 30% इज नथिंग बट 300. डायरेक्टली यू कैन डू दिस. मैंने आपको बताया है 10% फाइंड आउट करना है, तो यू हैव टू गो 1 decimal shift here. ओके, सो ये क्या आ जाएगा, 300, एंड दैट इज नथिंग बट affected by malaria in 2007. ये क्लियर है. नाउ यू हैव टू फाइंड हाउसवाइफ्स. अभी देखो यहाँ पे क्या है कि who found that every year out of affected people 60% were student and 10% were housewife, and here you have to find housewives. तो 300 का now again you have to find 10%. तो 300 का 10% is nothing but 30. directly you can say कि 1 decimal ऐसे shift हो जाएगा, and this will make what, 30. So 30 is nothing but your answer. So this is how you can do this question mentally. ठीक है, बट मैं फिर भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे करना है. ओके, सो होप यू आर गेटिंग. एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम, लेट मी नो. ठीक है, क्लियर? से यस एवरीवन. If you are there in the lecture, then okay, I need your response. Moving ahead. Okay, now this is what the second question. Give me 1 minute. So try it. Okay, one answer is coming. That is 135 from Nadia. What about others? Sujay, expecting from you. And ठीक है, little bit confusing. Okay, don't worry, I'll explain it. Very easy it is. Okay, so not getting. चलो, okay, so I'm explaining. Okay, I'm going to explain it. ठीक है, कि कैसे करना है ये. देखो यहाँ पे क्या है, in the year 2009, so 2009 में find the number of drivers who were not affected. ठीक है, who were not affected. तो ये not को आप अंडरलाइन कर लो. ठीक है, तो नॉट अफेक्टेड आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जब आपके पास टोटल नंबर, यस एग्जैक्टली, टोटल नंबर ऑफ
क्या है, ड्राइवर्स होंगे, ठीक है, और उसमें माइनस आप कर दोगे अफेक्टेड, इज इट करेक्ट? तो टोटल नंबर्स ऑफ ड्राइवर माइनस अफेक्टेड, तो उसके बाद जो आएगा दैट विल गिव यू व्हाट, नॉट अफेक्टेड, इज इट करेक्ट? सो दिस इज व्हाट द सिनेरियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर फाइंड आउट करना है, और फिर कितने ड्राइवर है जो उस ईयर में अफेक्टेड हुए हैं, दैट यू हैव टू फाइंड, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, यू विल गेट द आंसर। होप दिस इज क्लियर। देखो, वन आंसर इज कमिंग फ्रॉम सुजय एंड दैट इज आई थॉट सो राइट। ओके, तो देखो ये बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया ना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो लेट्स सी कि अभी सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, दैट इज व्हाट वन ऑफ द बिग टास्क फॉर यू पीपल। तो देखो, दिस इज व्हाट हाउसवाइफ, दिस इज हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, दिस इज स्टूडेंट्स एंड दिस इज ड्राइवर। मतलब ये 9 जो है ना ड्राइवर का करस्पॉन्ड करता है, आई कैन से। तो अभी देखो सबको ऐड कर दो तो इट विल गिव यू 40, and this 40, why? Because in ratio, if we are adding all the, you know, all the ratio which we have given, okay, so that will give you, ठीक है, अभी आप लोग रुक जाओ, आई एम डूइंग द क्वेश्चन, सो अभी सी द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन आप लोग और बेटर ट्राई कर सकते हो अगर आपने कंसेप्ट ढंग से समझ लिए देन। तो मैं क्या कर रहा हूं कि रेशियो को पूरा ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो इफ आई विल ऐड द होल रेशियो आई विल गेट 40, this is what the value in ratio, but in actual I can say there are how much, 100, so this 40 will, sorry, this is 1000, so I can say this 40 will correspond to 1000, so 1 will correspond to what, this 1000 upon 40, and that is nothing but 25, is it? 25 fours are 100, so I can say 1 will correspond to 25, and now you have to find the driver, so you have to multiply this, you have to find the value of this 9 in this ratio. So 9 into 25 will give you nothing but 130. Sorry. This will be 225. And this is what the number of driver, total driver which are present exactly in this year. ठीक है, तो 2009 में जो ड्राइवर प्रेजेंट है that is what 225, and now what you have to find कि कितने इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। तो 2009 की अगर बात करें लास्ट, तो लास्ट है that is how much 45%, so टोटल जो है 45% क्या है, इन्फेक्टेड है। तो 1000 का 45% is nothing but directly you can find 450, ठीक है, डायरेक्टली। ऐसे देखो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्टली, 1000, एक मिनट, सो 1000 into 45 upon 100 कर दोगे, so also you can get directly 450, या फिर 10% करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो आई कैन से कि 450 में हाउ मेनी आर ड्राइवर्स, 30%, तो इसका 30% यू हैव टू फाइंड, सो 30%, 10% क्या आ जाएगा, 10% विल बी व्हाट 45, एक डेसिमल पीछे शिफ्ट कर दो, तो 30% यू विल गेट व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 3, सो दैट विल गिव यू 15 एंड दिस 135, ओके। सो टोटल ड्राइवर आ गया 225, ठीक है, और इन्फेक्टेड ड्राइवर आ गए 135, so what you have to do, you have to just subtract it, ठीक है। so 5 9 and this is 0, so 90, and that will be what, nothing but your option number E, okay। तो बेसिकली मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर फाइंड आउट किया, उसके बाद फिर मैंने कितने ड्राइवर इन्फेक्टेड है वो मैंने फाइंड आउट किया, और आफ्टर दैट आई हैव बिन सब्ट्रैक्टिंग इट, ओके। सो आई एम गेटिंग द आंसर, ओके। होप you would have clear. Yes or no? Say yes or no, everyone, because I need your yes or no, your response basically.
ओके, सो shall I move for the next? किसी को नहीं आता है ना तो प्लीज लेट मी नो, मैं फिर से समझाऊंगा, I'll explain it again. Okay, okay, so now moving ahead, okay, for the third question. So this is what the third question. Little bit tricky, and don't be confused in this question. I'm giving you 1.5 minute for this particular question. Okay, just try it, but I need your right answer. Okay, so just try it. Okay, one answer is coming. Okay, so two answer is coming, and that is B, 35. Okay, anyone else? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, that also you have to focus. Okay, कि what is the difference in number of student affected and not affected. ठीक है, तो उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, नॉट यू हैव टू फाइंड द ओनली अफेक्टेड और जो स्टूडेंट है उन दोनों का. ठीक है, सो क्लियरली यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन ओनली यू कैन गिव द आंसर. ठीक है, सो इफ यू आर डन देन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन देन. Okay, so shall I move for the explanation part? Okay, one answer is coming, that is 260. Okay, don't worry, I'm giving you exact answer. Okay, so let's see. देखो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो अभी आप लोग स्टार्ट मत करना. ठीक है, सो प्लीज ऑब्जर्व द एक्सप्लेनेशन नाउ. व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अफेक्टेड एंड नॉट अफेक्टेड बाय मलेरिया इन द ईयर 2006. तो 2006, सबसे पहले 2006 में पहुंच जाओ आप. दिस इज 2006, और यहां पे जो है 40%. तो डायरेक्टली आई कैन राइट कि देयर आर 1000 का 40% इज नथिंग बट 400. ठीक है, 400 पीपल आर अफेक्टेड बाय मलेरिया. इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों को अब. ठीक है, और स्टूडेंट की बात हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड, देखो यहाँ पे क्या है कि अफेक्टेड पीपल 60% वेर स्टूडेंट. तो अफेक्टेड स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो आई विल फाइंड 60% ऑफ दिस 400. सो यू डोंट हैव टू डू 10% फाइंड आउट करोगे तो यू विल गेट 40. तो 60% फाइंड आउट करना है, यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 6, सो यू विल गेट 250, sorry 240. There are 240 student which are infected by this malaria. ठीक है, now
कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अब देखो मैं ये चीज बार बार नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने ये क्या किया था, सबको ऐड किया था, तो 40 जो 1000 को करस्पॉन्ड करता था, तो 1 विल करस्पॉन्ड टू 25, ठीक है। तो अब ये पार्ट याद रखना कि 1 विल करस्पॉन्ड टू दिस 25, ठीक है। तो अभी मुझे फाइंड आउट क्या करना है, स्टूडेंट। तो सेकंड वाला जो है ये दिस 11 इज करस्पॉन्डिंग टू स्टूडेंट पार्ट, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 11। सो दिस 25 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे वो भी समझा देता हूं। देखो 5 लिख दो और इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। 5 to 7 आ जाएगा और फिर इसको एज इट इज लिख दो, तो यू कैन राइट 275, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट जो है दैट आर हाउ मच, दैट आर 275, ठीक है। और इन्फेक्टेड हैं वो है 240। यू हैव टू फाइंड द नॉट इन्फेक्टेड, ठीक है। सो दिस विल गिव यू, ये है इन्फेक्टेड, okay. So this you will get what, not infected, and that is how much, that is 35. Is it correct? Now what is question, ठीक है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अफेक्टेड एंड नॉट अफेक्टेड। तो अफेक्टेड 240 है and not affected 35 है, and you have to find the difference of that. So if you will differentiate, you will get 205 as your answer, and that is nothing but your option number A. Is it correct? Say yes or no. I was taking 20 instead of 11. So देखो यहाँ पे आपको ढंग से समझना है कि फर्स्ट इज व्हाट, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, और उसके बाद ड्राइवर है, तो ये रेशियो भी अकॉर्डिंग टू दैट जाएगा, ठीक है। हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 20 और ये 11, ये 9। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अफेक्टेड एंड नॉट अफेक्टेड। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट कर लिया, ये रेशियो के हेल्प से मैंने सबको ऐड किया, तो 40 इज करस्पॉन्डिंग टू 1000, so 1 will correspond to this 25. So 11, why 11? Because 11 is corresponding to this student, so I will find the value of 11. So 11 will give you what, 275. Is it correct? तो 275 टोटल स्टूडेंट है, ठीक है। और मैंने इन्फेक्टेड फाइंड आउट किया कैसे, 2006 का 40% फाइंड आउट किया तो 400 आया, और उसमें इन्फेक्टेड है 60% स्टूडेंट, तो यू हैव टू फाइंड 60% ऑफ दिस 400, सो यू विल गेट 240 स्टूडेंट एज अ इन्फेक्टेड विथ मलेरिया, ठीक है। सो ये 240 इन्फेक्टेड है और टोटल स्टूडेंट 275 है। तो जो नॉट इन्फेक्टेड होंगे वो कितना हो गए, 275 माइनस 240, सो दैट विल गिव यू 35। तो ये नॉट इन्फेक्टेड है और ये इन्फेक्टेड है। हियर इट इज आस्किंग अबाउट कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इज अफेक्टेड एंड नॉट अफेक्टेड, ठीक है। मतलब डिफरेंस ऑफ इन्फेक्टेड एंड नॉट इन्फेक्टेड। तो इन्फेक्टेड 240 है और नॉट इन्फेक्टेड 35 है, एंड यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस। सो व्हाट यू विल डू, you will subtract it, so you will get 205 as your answer, and that is nothing but your option number A. Hope you are clear with this question. Okay, not a big question, but the things you have to understand in very clear manner, very precisely. Okay, say yes everyone, या फिर anyone having any problem, then let me know, I'll explain it. Shall I move now? Why? I need why, not yes. At least type why, everyone. Okay, then only I will get to know ना you are getting or not getting, ठीक है। तो okay, okay, so now I'm moving ahead. So this would be your fourth question, just try it out, giving you a little bit of time.
Okay, one answer is coming. What about others? Okay, 2-3 people is giving answer. That is 3:2. Okay, so I thought it is easy question. Yes or no? Easy? Is this the easy? Easy है? Hard है? Okay, chalo. So everyone is likely to giving the answer. So let's see. देखो, find the ratio of number of housewives 2005 and 2008. तो 5, this is the first year 30% और 8 6 7 8 that is 20. ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ this is 300 आ जाएगा और ये 20 का 200, मतलब 1000 का हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ना बेसिकली. तो ये 30% मैंने फाइंड आउट किया इन 2005 के लिए और 20% फॉर 2008 के लिए. इज इट? नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ हाउस वाइफ. सो हाउस वाइफ कितना है? 10%. तो इसका 10% यू विल फाइंड 30 एंड इसका 10% यू विल फाइंड 20. ठीक है, अब 10% फाइंड आउट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक है, मैं बार बार बता चुका हूँ. सो ये रिडक्ट हो जाएगा. सो यू विल गेट 3:2 एज योर आंसर. ओके, सो 10%, 1%, 50%, 5%. ठीक है, that should not be any problem. Okay, so shall I move now for the next one? Say yes or no. Okay, okay, so I need the answer from everyone. Just type Y. Okay, chalo. This would be your 5th question. Okay, for this particular. ये Mamover. Who is Mamover Education? Just write your spelling right. Okay. Okay, so now one answer is coming, that is E. DE. दो आंसर आ रहे हैं. Okay, from Dhruv. ठीक है, तो I think anyone could be the answer. Okay, D है. ठीक है. Okay, so there are 2-3 people from Astha, from Sujay, from Dhruv. I'm getting the answer. So you people are trying, just try it, and then if you are done with it, let me know. Okay, मैं करवाऊं? Shall I? Okay,
सी माई एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, विच ईयर हैड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट अफेक्टेड बाय मलेरिया, ठीक है। सो मलेरिया से स्टूडेंट जो अफेक्टेड नहीं है, दैट यू हैव टू फाइंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हर ईयर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होने वाले हैं, दैट वुड बी व्हाट, सेम, ठीक है। अब स्टूडेंट देख लो कौन सा है, दैट सेकेंड वन इज स्टूडेंट, ओके। सो हियर हर ईयर 275 स्टूडेंट होगा, बिकॉज we are calculating in 1000 only in every year, so that will be same for every year, 275 total student, ठीक है। now what you have to find, you have to find कि affected कितने हैं, ठीक है। तो देखो 2005 में कितना है, 30%, so 30% मतलब 300 का 60% you have to find, okay। so 300 का 60%, 300 का 10% is 30 and 60% is 180, is it correct? तो ऐसे यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू मेंटली। देखो डायरेक्टली मैं ला रहा हूं ना, अभी देखो नेक्स्ट क्या है, 40%, 40 का कितना 60, तो 40 400, दैट विल बी 240, ठीक है। ये 180 आ जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 30%, 30% का 60%, एंड दिस विल बी 275 का 20%, 200, 120, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 45, दैट इज 450, 450 का 60%, एंड दैट इज नथिंग बट, देख लो 450, तो 45 into 6, so you will get 270, is it correct? that is what 270। तो ये माइनस है, अब इसको माइनस कर लो, अब जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है, दैट इज व्हाट मैक्सिमम स्टूडेंट हु विल बी नॉट अफेक्टेड। तो देखो अब यहाँ पे इसका डिफरेंस भी आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो है इन दोनों के बीच में, ये तो सेम ही है, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा गैप जो है ना, दैट इज इन 2008। हाँ मतलब मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो दिस विल गिव मोर वैल्यू, ठीक है। मुझे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, दिस विल गिव मोर वैल्यू, सो दैट वुड बी व्हाट योर आंसर। होप यू आर क्लियर विथ इट, ठीक है। तो थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन पे आपको थोड़ा वर्कआउट करना है, थोड़े कैलकुलेशंस करो, एंड addition subtraction, that only you have to focus, okay। so hope this is clear to all of you. Anyone having any doubt regarding this question or regarding this caselet type of question? Say yes or no, then we are going to move for the next caselet type, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कितना सिंप्लीफाई वे में कर रहे हैं, यू आर गेटिंग इट, ठीक है। क्योंकि अगर इसको आप ना लिख के एक्स वैक्स करके अगर स्टार्ट करो ना, इट विल लिटरली आई एम सेइंग कि इट विल टेक मोर टाइम, एंड बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है वो चीजें, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, so I am making it very in very simplified way, I'm explaining, okay। so let's move ahead now, come on the next caselet type of question. So this is what the question, you have to read it, and after that we'll do some question basis on this. Okay, so just read it, I'm giving you 1 minute, and try to understand the things, फिर भी मैं explain करूंगा आपको, so don't worry about that। मैंने थोड़ा इसको बड़े में रखा है ताकि ये क्लियरली आप लोगों को विजिबल हो और अंडरस्टैंडेबल भी हो, ठीक है, पढ़ने में अच्छा लगे, दैट इज व्हाई आई मेक द साइज बिगर।
कुछ समझ रहा है? एनीथिंग? ओके, सो इफ इट इज डन लेट मी नो, देन आई विल एक्सप्लेन इट कि क्या है एक्चुअली। करूं मैं एक्सप्लेन? सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। ठीक है, करूं मैं एक्सप्लेन? से यस एवरीवन? ओके ओके, सो चलो देखो, कृष्णा इन्वेस्टेड सम मनी। ठीक है, तो अब देखो मैं एक यहाँ पे ग्राफ बना देता हूं। तो देखो ये सम मनी है, ठीक है, मनी, इसको इसने क्या किया, इन्वेस्ट किया अंडर 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो आप लोगों को हल्का सा फंडा सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं अभी बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कैसे होगा। ठीक है, यू पीपल नो ना सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, पता है कि नहीं? टेल मी ऑनेस्टली टेल। हाँ, क्योंकि मैं फिर आप लोग को थोड़ा एलैबोरेटली सब बताऊंगा एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, सो टेल मी, पता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली में क्या होता है? ठीक है, चलो ठीक है, तो जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है I'll explain little bit about that. Okay, okay, तो देखो, कृष्णा इन्वेस्टेड सम मनी अंडर 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो इसने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट कितना, 20% पर एनम पे इसने इन्वेस्ट किया और किसी दूसरे बैंक में इसने डाला। और किस, इसने कौन से बैंक में डाला? एक्सिस बैंक। ठीक है, अभी का जो बैंक है दैट इज एक्सिस। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब जब 1 ईयर हो गया, यहां पे 1 ईयर हो गया, 1 ईयर हो गया, देन एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही विड्रॉ ऑल अमाउंट। यहां से इसने क्या किया, ये जितने भी मनी आई थी, ठीक है, मतलब जो मनी इसने इन्वेस्ट किया था वो प्लस इंटरेस्ट, वो दोनों मिलके ये अमाउंट आया कुछ, इसको अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट प्लस मनी दैट इज नथिंग बट अमाउंट। ठीक है, तो जो अमाउंट उसके पास टोटल आया उसको उसने निकाला एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही विड्रॉ ऑल द अमाउंट्स फ्रॉम द एक्सिस बैंक एंड इन्वेस्टेड इन बंधन बैंक। उसके बाद इसने क्या किया, इसको बंधन बैंक में डाल दिया। सो दिस इज नाउ द चैप्टर व्हिच इज स्टार्टिंग ऑफ दिस बंधन बैंक, आई कैन से दैट इज बंधन। और इसने वहां पे क्या किया, सारा मनी डाल दिया ऑफ आर परसेंट पर एनम। रेट जो है दैट इज नथिंग बट आर परसेंट पर एनम। ओके, एंड विच इज व्हाट, विच इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर। तो 1 ईयर ये हो गया एंड यहां पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, और फिर उसको उसने फॉर 2 ईयर डाला है ना, तो अभी सेकेंड ईयर की बात हो रही है। एंड हियर फॉर 2 ईयर एंड ही रिसीव्ड 576 एज टोटल इंटरेस्ट। याद रखना ये इंटरेस्ट है, नॉट टोटल अमाउंट। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट मतलब फ्रॉम द बंधन बैंक। तो बंधन बैंक यहां से स्टार्ट होता है, तो ये आर, ये इंटरेस्ट प्लस ये सेकेंड ईयर का, दोनों इंटरेस्ट को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये टोटल कितना गेट कर रहा है, दैट इज 57600।
ठीक है, ये टोटल गेट कर रहा है। एंड हियर ऑल्सो इट इज गिविंग द फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट एट बंधन वॉज 24,000 मीन्स आई कैन से दिस इज व्हाट फर्स्ट ईयर्स, सो दैट इज नथिंग बट 24,000। ठीक है, तो बेसिकली मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूं कि मनी है, मनी को उसने 20% पे इन्वेस्ट किया इन एक्सिस बैंक, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज अमाउंट ही इज गेटिंग at the end of 1 year, he just got that amount and invested in Bandhan Bank at R%. ठीक है, रेट नहीं दिया है, सो इट इज नथिंग बट R%, और जो कि फर्स्ट ईयर का कितना है 24,000, ये एंड में दिया है, तो मैंने इसको लिख दिया है, तो यहीं पे बता रहा हूं। तो एंड और टोटल ये 24,000 प्लस ये जो सेकेंड ईयर का आया है, वो दोनों को कंसीडर ऐड करके ये टोटल कितना बना है 576, और फिर उसके पास ये इंटरेस्ट मिला है और बंधन बैंक का जो भी अमाउंट है दैट इज इट करेक्ट? दिस इज व्हाट द सिनेरियो ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो होप ये सिनेरियो क्लियर हुआ रहेगा आप लोगों को, हाँ या ना? लेट मी नो। पहले सिनेरियो समझ लो, आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन इन वेरी सिंप्लीफाइड वे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, क्वेश्चन में भी मैं सिनेरियो को और अच्छे से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, सो यू विल गेट टू नो कि हाउ यू हैव टू डू। ओके, तो अभी ये इतना सिनेरियो आप लोग ध्यान में रखो, और इसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा फंडा आप लोग समझ लो। देखो, जैसे सपोज कि मैं 200 रुपीज लिया, ठीक है, और मैं कहता हूं कि 10% मुझे क्या चाहिए, रेट चाहिए। ठीक है, 10% रेट चाहिए एट SI, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और मैं आपको पूछूं कि आफ्टर 2 ईयर, ओके, 200 10% रेट, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर, दिस इज व्हाट 1 ईयर, दिस इज 1 ईयर, तो 2 ईयर टोटल कितना अमाउंट उसको मिलेगा, जस्ट टेल मी, दिस इज व्हाट योर अमाउंट। ठीक है, जस्ट टेल मी, दिस इज वेरी इजी थिंग, और यू डोंट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूले। ओके, फॉर्मूला कहीं पे अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन विदाउट एनी फॉर्मूले। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो वेरी गुड, वन आंसर इज कमिंग, दैट इज 240। ओके, सो 240 बेसिकली क्या हो रहा है, देखो 10% है ना, तो 1 ईयर का 10%, सेकेंड ईयर का 10%, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 20%। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द 20% ऑफ दिस 200, सो यू विल गेट व्हाट 40, बिकॉज 10% इज 20, तो 20% is 40, so you have to add what 40 in it, so if you will add, so it will give 240 as your amount आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो दैट विल बी व्हाट दिस 40 रुपीज इज सिंपल इंटरेस्ट, और ये 240 अमाउंट आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, दैट इज व्हाट योर प्रिंसिपल यू कैन से। ओके, जितना इन्वेस्ट किया गया दैट। ओके, सो दिस इज व्हाट द सिंपल इंटरेस्ट। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे है, मान लो अगर 200 पे, ठीक है, सेम रेट पे आपको बोला 10% पे, you have to find compound interest। ठीक है, so what you have to do and what will be the amount, tell me, just write what will be the amount। compound interest है, ठीक है, 2 years, same 2 years। ओके, सो इट इज ऑल्सो वेरी इजी। इसको कैसे कर सकते हो, मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसको करना कैसे है, क्योंकि इससे ना बहुत इजी हो जाएगा। देखो क्या करना है, 200 है, इसमें क्या होता है कि हर ईयर, ठीक है, हर ईयर पे जितना अमाउंट आता है ना, उस पे इंक्रीज होता है। बट सिंपल इंटरेस्ट का फंडा क्या है कि हर एक ईयर में इस 200 पे ही 10% बढ़ेगा, मतलब 200 का 10% 20 हर ईयर बढ़ेगा। बट यहाँ पे 200 पहले मतलब ईयर में 200 पे इंक्रीज होगा, बट दूसरे ईयर में ये इस पे 10% इंक्रीज कर दो तो इट विल गिव 220, और इस पे ना 20%, सॉरी 10% है ना, तो 10% इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब जितना आया ना
उस पे इंक्रीज होता है इन नेक्स्ट ईयर. सो दिस इज व्हाट द फंडा ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. तो अब इसको बढ़ाना कैसे है, इसको इजीली आप ऐसे लिख सकते हो. आई एम गिविंग यू द आइडिया. सो आई कैन से व्हाट दिस 200 एंड दिस इज व्हाट 10%. इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लो तो इट विल गिव यू 1/10. ओके, सो 1/10. तो ये क्या हो जाएगा, अब आपको बढ़ाना है ना. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ऐड इट. So you have to add this 10 plus 1, that is nothing but 11 upon 10. 11 upon 10. Why 2 times? Because 2 year का चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर. सो यहाँ पे 10 आ जाएगा, सॉरी. सो अब इसको रिडक्ट कर लो, 10 10 और ये 2 0, 11 11 जा 121, 2 जा 242. सो दैट विल बी व्हाट योर अमाउंट. ओके, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फाइंड आउट करना है देन क्या कर सकते हो आप, ये 240 माइनस दिस 200. So that will give you what 42 as your compound interest. So this is how you can get the value. ठीक है, hope you are getting. तो ये था एकदम बेसिक अबाउट दिस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया है ताकि क्वेश्चन में आपको इश्यू ना आए. मैं पूरा क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा, सो डोंट वरी, बट यू शुड नो दिस टाइप ऑफ मतलब बेसिक, मतलब बेसिकली दिस थिंग्स. ओके, सो आई एम मूविंग नाउ. Now try this question by your own. ठीक है, first of all try by your own. I'm giving you 1 minute. Just read the question, just try it out by doing something. Okay, and after that I'm going to explain this कि कैसे करना है. आ रहा है किसी को, नहीं आ रहा है? ठीक है, और ट्राइंग. Okay, just try it. Okay, चलो, I have given you enough time, है ना? I'm explaining now. Shall I?
So just come here and try to focus. I need your little bit of concentration and you will get कि हाँ यार easy है, कुछ hard नहीं है, ठीक है. But right now I thought so you are thinking कि हाँ यार हो सकता है ये hard हो, but don't worry. मैं अभी इसको explain करने वाला हूँ. That would be what very easy. चलो see. So यहाँ पे देखो at the end of 1 year he withdraw all amount, है ना. So at the end of 1 year he withdraw all of amount from Axis Bank and in Bandhan Bank the rate of R. ठीक है, चलो मैं बंधन बैंक की बात कर लेता हूं. Bandhan Bank. First of all, we'll talk about this Bandhan Bank. Or first of all, we are going to try this R. We are going to now find out this R. Is it? Now, okay, so answer जो भी है अभी आंसर पे फोकस नहीं करना है, कैसे आ रहा है ऑन दैट यू हैव टू फोकस. ओके ना. तो R% पर एनम देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो. अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो दिस इज व्हाट द 24,000 ऑफ फर्स्ट ईयर एंड दिस इज व्हाट 576. ठीक है, 576 ऑफ total. This is total 576,000. I'm not writing here 00 now. Total, ठीक है. और this is what 240 I'm considering it. So it will give you 6 and this is what 3 and this is 3. So 336. Now I can say 336 and 00. So this would be what the interest of second year. Is it? इतना क्लियर है? ये टोटल है ना, तो मैंने क्या किया, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, और ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है. ठीक है, दोनों का इंडिविजुअली. राइट नाउ आई कैन फाइंड द रेट इजिली. कैसे फाइंड आउट करना है रेट? देखो सबसे पहले तो ये जो अननेसेसरी जीरो है ना, ठीक है, उसको कंसीडर नहीं करना है. ठीक है, उसको कंसीडर करके भी कोई मतलब नहीं है. दैट इज व्हाई आई एम नॉट कंसीडरिंग इट. चलो इसको जाने दो. नाउ हाउ कैन यू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो देखो ये कितना इंक्रीज हुआ. ठीक है, that you have to find first कि ये कितना इंक्रीज हुआ. So 336 minus 240 that will give you what 6 and 9. I can say this will be what 96. 2 जीरो डालना है, बाद में डाल देना आप. ठीक है, तो 96 आउट ऑफ दिस 240. ठीक है ना, 240 था और उसके बाद 336 बना है. So 96 आउट ऑफ दिस 240. So I can say 96 by 240. क्यों? क्योंकि 240 पे 96 इंक्रीज हो रहा है. सो द बेस विल बी व्हाट 240 एंड हियर यू हैव टू फाइंड परसेंटेज. सो यू हैव टू डू व्हाट मल्टीप्लाई बाय 100. सो दिस 24 4 जा 96. सो दिस विल गिव यू 40%. इज इट करेक्ट? ये 40% का फंडा समझा? ठीक है, ये और ये याद रखना कि ये जरूरी नहीं है कि अमाउंट से ही आप फाइंड आउट कर सकते हो. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ना, दिस इज व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो 2 साल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, उसका डिफरेंस फाइंड आउट करके किस पे इंक्रीज हो रहा है उसको अगर आप बेस में रखते हो, देन ऑल्सो यू कैन फाइंड द व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. इज इट करेक्ट? मतलब ये रेट का वैल्यू है. ठीक है ना, ये रेट का वैल्यू है इन रुपीज एंड यू हैव टू फाइंड इट इन परसेंटेज. ओके, सो दैट आई एम टेलिंग. इज इट करेक्ट? तो आर की वैल्यू समझ में आई कि कैसे आया 40 से? यस एवरीवन. फिर मैं आगे बढ़ूंगा. ओके, यस. आर की वैल्यू मैंने कैसे फाइंड आउट की, वो क्लियर है? ओके, सो नाउ आर की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 40%. सो दिस इज व्हाट योर 40%. ठीक है, अब देखो आई कैन से
कि 40% इज नथिंग बट 24,000, क्योंकि फर्स्ट ईयर का क्या है, इतना ही है ना. तो आई कैन से दिस 40% विल करस्पॉन्ड टू दिस 4 मतलब 24,000. सो आई कैन से 1 विल करस्पॉन्ड टू 24,000 सॉरी 000 डिवाइड बाय 40 एंड यू हैव टू फाइंड 100. 100 क्या आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि सम होता है फिर उस पर इंक्रीज होता है, तो कोई चीज 100 होती है उस पर फिर 40% इंक्रीज करते हो, फिर ये आपका कुछ आता है, फिर सेकेंड ईयर में फिर से 40% इंक्रीज करते हो उस पर, फिर ये आपका अमाउंट आता है. ठीक है, तो 100 इज व्हाट योर इनिशियल वैल्यू. तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, 100 की वैल्यू. सो आई कैन से दैट विल बी व्हाट 600. सो 1 की वैल्यू 600, सो 100 की वैल्यू 600 एंड दिस इंटू 100, सो इट विल गिव यू 60,000. मतलब मैं कह सकता हूं कि एक्सिस बैंक से उसने जो पैसे निकाले थे दैट वुड बी नथिंग बट 60,000. ओके, होप टिल नाउ इट कुड बी क्लियर. अरे कुछ नहीं कर रहा हूं यार, इजी है, इट इज वेरी. नहीं, आंसर इज नॉट 60,000. ठीक है, आंसर के बारे में अभी मैं बात करूंगा. ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द आंसर एंड basically I will talk about this question particular. okay, तो मुझे फाइनल इतना पता चल गया कि एक्सिस बैंक से, ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहना या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहना अगर चाहिए तो. ठीक है, नाउ मैं कह सकता हूं कि देखो ये था एक्सिस बैंक में पैसा लगाया हुआ, मतलब आपने इन्वेस्ट किया और वो 20% से इंक्रीज हुआ और ये बन गया कितना, 60,000. ठीक है, यही तो मैंने निकाला ना अभी कि 60,000 हमने क्या किया, बंधन बैंक में इन्वेस्ट किया. ओके, तो 20% किसी नंबर पे इंक्रीज हो रहा है एंड दैट इज मेकिंग इट 60,000. सो व्हाट विल बी दिस वैल्यू दैट यू हैव टू फाइंड. सो आई कैन से कि 20% इंक्रीज हो रहा है ना. ठीक है, तो 20% इंक्रीज हो रहा है मतलब 100 अगर मैं ये वैल्यू को कंसीडर करता हूं, इसको 100 कंसीडर करता हूं, तो दैट विल बी व्हाट 120. इज इट? सो आई कैन से 120 विल करस्पॉन्ड टू दिस 60,000. ठीक है, सो 1 will correspond to this 60,000 upon this 120 and now what you have to find, you have to find this value of this 100. ठीक है, तो ये इसको डिडक्ट कर दो 12 into 10. so I can say this 50,000 is your answer. या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 50 पे अगर आप 20% इंक्रीज करोगे, ठीक है, 50 का 20% होता है 10,000. ठीक है, तो 10,000 आप इंक्रीज करोगे, सो यू विल गेट व्हाट 60,000 एज योर व्हाट द टोटल अमाउंट. ठीक है, तो यहां पे यही पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, इन स्टार्टिंग हाउ मच मनी हैड कृष्णा इन्वेस्टेड इन एक्सिस बैंक. सो इट हैज invested how much, 50,000 in Axis Bank. Hope this could be clear to all of you. हाँ या ना? Say yes or no everyone. ठीक है, इजी. देखो मैंने बहुत इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है एंड यू नो आई एम मेकिंग इट वेरी इजी फॉर यू पीपल. I'm not using any formulae of simple compound interest. You can see this. I'm giving my 100% of effort for your understanding. ठीक है, अब सिर्फ आपको हाँ या ना बोलना है. ठीक है, अगर कोई पार्ट नहीं समझा then let me know कि सर explain this part again, then I'll explain it again. ठीक है, okay, only that you have to do and बाकी का चीज I have to do. okay, so don't bother about that. तो इफ इट इज क्लियर, लास्ट पार्ट नहीं समझा. ठीक है, लास्ट पार्ट क्या नहीं समझा, देखो यहाँ पे क्या है कि ये 60,000 मैंने इससे पहले निकाला. 60,000 कैसे आएगा, सबसे पहले मैंने 40% निकाला आर की वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है दैट इज हाउ मच 24,000. तो मैंने क्या किया, हाँ देखो अभी आप बोल रहे हो जब मैंने वो स्लाइड या फिर वो लिखा हुआ मिटा दिया, रब कर दिया, आफ्टर दैट यू आर asking about that how you found 40%. ठीक है, तो अभी ऐसे मतलब अभी मैं 2 स्लाइड बाहर आगे चला जाऊंगा, देन यू विल आस्क अबाउट दिस क्वेश्चन, तो मैं कैसे आंसर दूंगा. ठीक है, फिर से मुझे सारी चीजें लिखने पड़ेगी. ठीक है ना, सो मेक श्योर दैट यू आर आस्किंग एट दैट टाइम ओनली. ओके, बट फिर भी आई विल एक्सप्लेन दिस, डोंट वरी.
सबसे पहले देखो 40% मैंने कैसे निकाला वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो ये 576 है और ये 240 है। देखो ये 2 जीरो को लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, इट विल गेट कैंसल। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि 576 टोटल है अगर, तो फर्स्ट ईयर का कितना है 240 और टोटल 576 है, तो दूसरे ईयर का कितना हो जाएगा 336। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट 336। ठीक है, एंड ये देखो इंक्रीज कितना हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 96। ठीक है, 96 ऑन व्हाट, दिस 240। तो मैंने 96 इज हाउ मच परसेंट ऑफ दिस 240 मैंने फाइंड आउट किया और ये मुझे मिल गया क्या 40%। सो दिस इज हाउ आई गॉट दिस 40%। ओके, होप दिस वुड बी क्लियर, है ना। मैंने दोनों के इंटरेस्ट को लिखा है मैंने, और ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नाउ ये आ गया आपका 40%, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब आगे का थोड़ा सा समझ लो। नाउ द सेकेंड थिंग कि हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये 60,000 कैसे आया। ठीक है, तो ये जो रेट है दैट इज हाउ मच 40%, अभी मैंने फाइंड आउट किया। तो अगर 40% है वो रेट है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना, दैट इज हाउ मच 24,000। इज इट करेक्ट? देखो फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट एट बंधन बैंक, so that is 24,000. So I can say this 40% is nothing but 24,000, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है which is what 40% increase हुआ है, तो 40% is what 24,000. So I can say 40 will correspond to 24,000. So 1 will correspond to 600. 600 कैसे आया, डिवाइड किया 24,000 डिवाइड बाय 40. तो नाउ यू हैव टू फाइंड 100 की वैल्यू. ठीक है, 100 इज व्हाट द सम, बेसिकली द प्रिंसिपल इज व्हाट 100 होता है हर जगह. ठीक है, तो 100 की वैल्यू फाइंड आउट की, तो 600 इंटू 100 एंड दैट इज नथिंग बट 60,000. तो ये क्या आ गया आपका अमाउंट. अमाउंट मतलब एक्सिस बैंक का अमाउंट आ गया, और बंधन बैंक में आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसको टेक आउट करके दैट इज व्हाट दिस 60,000. ओके, तो यहां तक होप क्लियर हुआ रहेगा. नाउ इट इज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन में ये लोग आस्क कर रहे हैं कि हाउ मच मनी हैड कृष्णा इन्वेस्टेड इन एक्सिस बैंक. तो देखो कुछ अमाउंट है और उस पर 20% इसने क्या किया है, इंक्रीज करके, इंक्रीज किया है मतलब सिंपल इंटरेस्ट मिला है, और ये बन गया है कितना 60,000. ठीक है, तो ये अमाउंट कितना है. तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस चूज कर लो, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता. 10,000 में 20% इंक्रीज करोगे तो 60,000, ये भी बन नहीं सकता. एक ऑप्शन बचता है 50,000, यू हैव टू चेक इट. तो 50,000 में 20% 50,000 का निकालोगे तो यू विल गेट व्हाट 10,000. और जब 10,000 आप इसमें ऐड कर दोगे तो यू विल गेट व्हाट 60,000. मींस आई कैन से दिस 50,000 कुड बी व्हाट आवर आंसर, एंड दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ दिस एक्सिस बैंक. And you can also say that this would be what your first year's principal, या फिर the money invested in Axis Bank initially. Is it correct now, everyone? हाँ या ना? Okay, so I need your response. ठीक है, चलो now I'm moving ahead. ठीक है, so try this question. Now this question, total how much interest did Krishna get from the Axis Bank and Bandhan Bank? This is very easy question, you can do. ठीक है, I'm giving you little bit of time but you can try by your own. One answer is coming from Sujay and that is E. Okay, none of the above. ठीक है, what about others? They are trying ना, just try it. ठीक है,
ओके, वन आंसर इज कमिंग, दैट इज बी। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो मैं समझा देता हूँ। इट इज वेरी इजी कि एक्सिस बैंक में देखो, एक्सिस बैंक में हमने कितना 10,000 एक्स्ट्रा पाए थे ना, क्योंकि 50,000 पे हमने क्या किया था, 20% फाइंड आउट किया था, दैट इज नथिंग बट 10,000। और बंधन बैंक में टोटल कितना मिला है, 57600, 57600, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 576 में 10,000 ऐड करोगे तो 676 आएगा ना, इज इट करेक्ट? 676 कौन सा ऑप्शन है, दैट इज बी। दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन, इजी है ना, देखो कितना इजी है, ठीक है। से यस और नो, है ना, इजी, बहुत इजी था। This is what the simple interest of excess, and this is what the compound interest total, and that is what given. Okay, so shall I move now for the next one? हाँ या ना बोलो। Okay, so I'm moving, ठीक है। So now this is the second question, third question. Try it out, ठीक है, बहुत easy है, हाँ कोशिश करो करने की। उसके बाद मैं समझाऊंगा इसको कितना इजी वे में हम कर सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। मतलब बहुत ही लेस, यू नो, इन लेस calculation you can do this question, okay? So just try it out, I'm giving you 1 minute behind it, after that I'll explain, okay? So start. Getting? Not getting? अरे बोलो, say yes or no.
Shall I explain this? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, हार्ड लग रहा होगा बट आई विल मेक इट वेरी वेरी इजी, ओके। Okay, one answer is coming, that is A. Didn't get. Okay, चलो. So let's see my explanation कि how you can do this question. देखो क्या बोल रहा है कि if the rate of interest was interchanged, ठीक है, तो rate of interest जो है ना interchange कर दिया गया है और कुछ नहीं है, nothing else. दोनों जगह पे rate of interest change कर दिया है and here it is asking कि क्या होगा आंसर। तो देखो सबसे पहला फर्स्ट अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो आई कैन से दैट विल बी व्हाट 50,000, ठीक है, और 50,000 इनटू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो आएगा मतलब व्हाट आई कैन से, चलो मैं पहले डिक्टेट कर देता हूं क्वेश्चन। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट इंटरचेंज एक्सिस बैंक हैड ऑफर्ड R% per annum simple interest and Bandhan Bank had offered 20% per annum compound interest, then how much less money Krishan would have received in end of the 3 year? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द एक्चुअल, ठीक है। तो देखो 50,000 है, 50,000 पहले एक्चुअल फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे रिवर्स करके एंड देन विल गेट कि हाउ मच लेस ही इज गेटिंग, ठीक है। तो देखो 40% ये है, आर की वैल्यू इज हाउ मच 40%, तो व्हाट यू हैव टू डू 40% को मैं क्या कर रहा हूं, मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो आई कैन से 40% विल बी व्हाट बाय 100, सो 2/5 आई कैन से, सो दैट विल बी 2/5, ठीक है। और मुझे अगर इंक्रीज करना है कोई चीज 40% से, तो व्हाट आई विल डू, आई विल एड दिस, सो आई कैन डायरेक्टली राइट 7/5. इज इट करेक्ट? से यस और नो? अरे हाँ या ना, ये समझा, ये फंडा समझा, ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग, हाँ, मतलब मैं अभी ये क्या बोलते हैं इंटरचेंज्ड है, ठीक है, मैं इंटरचेंज वाला पहले कर रहा हूं, ठीक है, इंटरचेंज्ड, ठीक है। तो इंटरचेंज कर दिया है रेट, तो पहले क्या हुआ 40% से सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, अब क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अब कितना हो गया है 20% हो गया है ना भाई, क्योंकि हमने इंटरचेंज कर दिया, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट 40% से था बट अब कंपाउंड इंटरेस्ट 20% से हो गया, तो 20% को अगर आप चेंज करोगे फ्रैक्शन में तो इट विल गिव यू 1/5 एंड इफ यू विल एड इट यू विल गेट 6/5, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे 6/5 एंड इनटू 6/5, क्योंकि 2 ईयर का क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दिस इज व्हाट 1 ईयर्स SI, सो दिस इज व्हाट द वैल्यू आफ्टर इंटरचेंजिंग, ठीक है, ये इंटरचेंजिंग वैल्यू आई। और अब आपको दूसरा जो है फाइंड आउट करना है जो इंटरचेंजिंग नहीं है, ठीक है, मतलब एक्चुअल। तो एक्चुअल कैसे करोगे 50,000, क्योंकि इनिशियल अमाउंट 50,000 है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू 6/5 क्योंकि 20% से पहले इंक्रीज हुआ है, आफ्टर दैट यू हैव टू डू 2 टाइम्स 7/5 क्योंकि 40% से 2 बार इंक्रीज हो रहा है। इज इट करेक्ट? अरे हाँ या ना बोलो। अब ये दोनों फंडा आप लोगों को क्लियर होना है, ये इंटरचेंज है, वैल्यू इंटर मतलब परसेंटेज इंटरचेंज कर दिया, रेट ऑफ परसेंटेज तब आया, और ये एक्चुअल है। दिस इज फाइन, इज इट फाइन? ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ दिस, ठीक है ना। तो डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना है तो देखो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट होता है मैं आपको समझाऊंगा, ये कैलकुलेशन भी आपको पूरी नहीं करनी है, यू विल गेट आंसर। देखो 50,000, ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया, ये ऑब्वियसली बड़ा है, बिगर, ठीक है, तो इसमें से ये सब ट्रैक होगा। 50,000 मैंने कॉमन ले लिया और देखो एक 6 और एक 7, ठीक है, एक 6 और एक 7 दोनों में कॉमन है, ठीक है, देखो ना एक 6 इसमें भी है और एक 6 इसमें भी है, एक 7 इसमें भी है, एक 7 इसमें भी है, तो मैंने 6 और 7 को कॉमन ले लिया, ठीक है। और नीचे ये पूरा देखो तीनों में सेम ही है डिनोमिनेटर, तो मैंने इसको भी कॉमन ले लिया और मैंने इसको 125 लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अब ये बिगर है तो बचा जो दैट इज 7, तो 7 को यहां पे लिख दिया माइनस ये 6
6 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब कुछ मत करो, कैलकुलेशन कर लो। आई कैन से 25, 125, 4 जा 500 और इस पे 2 जीरो डाल दो, ठीक है। 125 4 जा 500 होता है ना, देखो 100 4 जा 400 एंड 25 4 जा 100, ठीक है। तो 100 4 जा 400 प्लस 100, तो दैट इज 500। तो ये 500 है, तो इसको आप 4 से रिडक्ट किए तो 125 4 जा ये कट गया, ये 500 और ये 2 जीरो आपने यहाँ पे डाला। इज इट करेक्ट? अब मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 जा 42 और ये तो सबट्रैक्ट होके 1 दे देगा आपको, ये 42 हो जाएगा, 42 इंटू 4, ठीक है। तो 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, सो आई कैन से 168, सो 168 और ये 2 जीरो है, 2 जीरो डाल दो and this will give you what, nothing but your option number A. and ये 1 भी है ना, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो you will get the same thing. तो देखा कितना इजी किया इसको मैंने, से यस और नो, या फिर किसी को नहीं समझा देन लेट मी नो, क्या नहीं समझा, कौन सा पार्ट नहीं समझा, देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. देख कुछ तो बोलो, से यस और नो, एनीथिंग. अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है. Only what we have done, we have interchanged the rate of interest and after that we have subtracted. फिर मैंने आपको बताया कि जो इंटरचेंज करेंगे तो कैसे इंक्रीज होगा, दैट आई हैव एक्सप्लेन इन अ सिंप्लीफाइड वे, ऐसे, ठीक है. और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि हाउ यू हैव टू डू द कैलकुलेशन इजीली, ठीक है. तो देखो कैलकुलेशन कितना इजी हो गया. यहाँ पे आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर जो भी लाते एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, ओके. बट इन दिस सिनेरियो you can get answer very easily, है ना. होप समझा रहेगा. ओके, moving ahead now. Shall I move now? Okay, okay, so I'm moving now. Okay, because this was little bit, you know, lengthy type of question, that is why I explained it very elaborately. Okay, moving ahead now. So this is what the fourth question from this, and I thought this would be our last question, so don't worry, just do this question and we'll see into the next session then. And this is very easy question, okay, so you can do it very, you know, easy. Okay, one answer is coming from Natia, and that is what, 30,000. What about others? Okay, Sujay is also giving that is answer, and that is B. Okay, so let's see कि क्या है. If Krishna had invested the sum of money only in Axis Bank, ठीक है, only Axis Bank में इसने इन्वेस्ट किया for 3 year under 20% per annum simple interest, ठीक है. तो at the end of 3 year total how much simple interest he would have received. देखो कितना इजी है, 50,000 है, ठीक है, और 3 ईयर आपको 20% से, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 20 एंड दैट इज नथिंग बट योर 60%. ओके, तो टोटल ही विल गेट हाउ मच, 60% ऑफ दिस 50,000, ठीक है. तो मुझे पता है, मैंने फाइंड किया है कि 20% क्या होता है 50,000 का, दैट इज 10,000. इज इट करेक्ट? यहाँ पे मुझे 60,000 करना है, तो 20% इज 10,000, तो 60 इज व्हाट, नथिंग बट 20 into 3, so you have to also here multiply 10,000 into 3, so you will get what, 30,000 as your answer.
Is it correct? So this is how you can do this question, you know, mentally. So actually I am explaining the fundamental, which is what, which is only based on the mental calculation. Okay, so hope you would have clear all the question.